Good morning to you all. Am I audible? Yes, sir. Okay. प्रीवियस का क्लास अभी चल ही रहा है क्या? Okay, let me share whiteboard. Okay, so in the last class, we are going through the implementation of 4:1 multiplexer. Sorry, implementation of 8:1 multiplexer using 4:1 mux. So यहाँ पर हमने एक expression लिया हुआ था. So in this expression, we have the min terms up to 6. So and we have to implement this function using a 4:1 multiplexer. So is there any doubt in this truth table? No, sir. अगर आज भी किसी को डाउट है तो फिर से देख लेंगे. ओके, तो अगर इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा कि अगर ये 4:1 अगर ये 4:1 मार्क्स नहीं दिया होता और सिंपली दिया होता दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, तो हम इसे आसानी से 8:1 मल्टीप्लेक्सर से दिखा सकते हैं. तो ये एक्चुअली ट्रूथ टेबल मैंने दिखाया था. क्यों? सो दैट जस्ट कि ये जो मल्टीप्लेक्सर है, ये मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. ओके, so now we have to implement this expression using 4:1 multiplexer. So let us proceed for that. So 4:1 multiplexer से बनाना है तो हमारा पहला प्रोसेस क्या है कि चूंकि हमें 4 इनपुट्स देने हैं, तो लेट उसे हम D0 D1 या उसकी जगह में कुछ भी लिख सकते हैं हम, D1 D2 और D3. So we will have A bar and A. Okay, now min terms will be from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So इस तरीके से हमने सारे मेन टर्म्स को लिख दिया है. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कौन सा मेन टर्म है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कौन सा मेन टर्म है, हमें ये देखना है. तो मेन टर्म हमारे पास है कौन कौन सा, उसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वी हैव मेन टर्म 1, 3, 5 and 6. सो वी हैव 1, 3, 5 and 6. सो अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस में हमें आउटपुट के टर्म में मतलब जो कौन से वैल्यूज हमें मिल रहे हैं बेस्ड अपॉन दैट. तो हमने देखा था कि अगर बॉटम और लोअर, बॉटम और हायर दोनों ही मीन टर्म्स अगर इन सर्कल हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम 1 पुट करेंगे, और दोनों में से कोई भी अनसर्कल नहीं है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 पुट करेंगे. और अगर अपर
टॉप वाले मिन टर्म्स एनसर्कल्ड हैं और बॉटम वाले एनसर्कल नहीं है, देन वी विल, so 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें a बार मिल रहा है, so we will put a बार, एंड यहाँ पर देखें तो यहाँ हमें मिल रहा है a. Okay, now we can implement using a 4:1 mux as so we will have 4 inputs with D0, D1, D2 and D3. As we have taken A as input, so B and C will be the select inputs. As we have, it is a 4:1 mux. So now the inputs what we will have is, for D0 we have 0. 0 means it will be connected with ground, and D1 is connected with 1, so it is connected with 1, that is 5 volt, that is VCC. D2 and D3, so D2 is connected with A and D1 is connected with A bar. Okay, now this is a 4:1 mux, and we have the output whatever it is given, so it is represented as FABC. so हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट में ये फंक्शन मिल जाएगा. Okay, so this is a very simple way of implementing an expression using a multiplexer. Okay, so let us take some more examples. I am giving you some problems to solve it by yourself. Okay, so the questions are, first question is, so you have to implement it using multiplexer. Implement given function using mux. Okay, so the first one is y a b c is equal to sigma m 0 1 2 6 and 7. Next is y a b c equals sigma m 0 1 4 5. Okay, next the function y is equal to a bar b c bar plus a b bar c bar d plus a bar b bar plus a bar b bar d plus a bar c d. Next question is y equals a plus b a bar plus b plus c a plus b bar. You have to implement half adder and half subtractor using mux.
Okay, so these are the questions which you have to go through. So ये सारे questions हो जाएंगे. इसमें कोई doubt है किन्हीं का कि कैसे करेंगे? किसी question में इनमें से? You have to implement all these functions or questions using a multiplexer. कोई doubt है किन्हीं का? Yes, sir. इनमें से किसी एक भी क्वेश्चन में किन्हीं को डाउट है कैसे करेंगे? ओके, सभी लोग कर लेंगे. तो ये तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक सभी लोग कर लेंगे इसे, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ क्या है, इम्प्लीमेंट गिवन फंक्शंस यूजिंग मल्टीप्लेक्सर. सो यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर और 8:1 मल्टीप्लेक्सर और 16:1 मल्टीप्लेक्सर. यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है. तो ये जो फंक्शन है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, आप इसे 8:1 मल्टीप्लेक्सर से भी दिखा सकते हैं और 4:1 मल्टीप्लेक्सर से भी दिखा सकते हैं. ठीक है, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5. सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है? क्या दिया हुआ है? मैक्स टर्म में दिया हुआ है. तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस मैक्स टर्म एक्सप्रेशन इनटू यूजिंग मल्टीप्लेक्सर. सो हाउ यू विल प्रोसीड? फॉर सेकंड नंबर क्वेश्चन, how will you proceed? कोई बोलोगे? हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा ना? सेकंड नंबर हो जाएगा. अरे कोई कोई हाँ भी नहीं बोलोगे, ना भी नहीं बोलोगे, पता कैसे चलेगा? बता रही है. क्या फटाक से ऑन करते हो ऑफ कर लेते हो, पता ही नहीं चलता क्या बोले. सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा सारा. तो सेकंड वाला बता दीजिए. सेकंड वाला में क्या बताना है? सेकंड वाले में मैक्स टर्म में दिया हुआ ये पता चल रहा है ना? यस सर. हाँ, मैक्स टर्म में दिया हुआ है तो इसको क्या मिन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर, हो जाएगा. तो बस मिन टर्म मिल गया तो फिर उसको मल्टीप्लेक्सर से दिखा देंगे. थर्ड वाले में, हो जाएगा सर. थर्ड वाले में क्या करना होगा, कैसे प्रोसीड करेंगे? सर पहले मीन टर्म में लिख लेंगे. हाँ, मिन टर्म में लिख लेंगे. तो थर्ड वाला क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? नहीं सर. थर्ड वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कर सकते हो. ओके, सो थर्ड वाले में भी, थर्ड वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और फोर्थ वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. सो फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गेट द min term, get the expression in terms of min term and max term. ओके, मैक्स टर्म नहीं, अगर ये मैक्स टर्म में वाला, ये मैक्स टर्म वाला क्वेश्चन है तो मैक्स टर्म वाले क्वेश्चन में आप मैक्स टर्म निकाल लो और उसको मिन टर्म में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हो. और नहीं तो अगर आप मिन टर्म में कन्वर्ट नहीं भी करो तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रोसीड किया था, प्रीवियस क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन में
तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, ये सिग्मा m 1 3 5 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर ये सिग्मा m 1 3 5 6 लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को अगर हम मैक्स टर्म में लिखना चाहें, सॉरी कैपिटल M, तो क्या लिखेंगे? 0 0 2 4 02478 0 2 4 7 7 7 8 8 नहीं होगा सर, 8 नहीं होगा, नहीं होगा, 7 तक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल से मैक्सिमम 7 तक जाएगा। तो क्या ये जो हमने बनाया है मल्टीप्लेक्सर, क्या ये मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? हम मैक्स टर्म में क्या करते हैं, मैक्स टर्म में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या ये सारे टर्म्स 0 2 4 7 0 2 4 और 7 क्या 0 से कनेक्टेड हैं? यस सर, 0 से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ये मैक्स टर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, अगर आपके पास मीन टर्म हो या मैक्स टर्म हो। अगर मैक्स टर्म हो तो उन सारे वाले टर्म्स को 0 से कनेक्ट करेंगे, और मीन टर्म के फॉर्म में हो तो उन सारे वाले टर्म्स को 1 से कनेक्ट करेंगे। बस यही है, और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अभी हमें क्या करना है, ये हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर डिजाइन करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो कैसे करेंगे? हाफ एडर का हम ट्रूथ टेबल जानते हैं, हाफ एडर का ट्रूथ टेबल हम जानते हैं। नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? जानते हैं सर, जानते हैं। तो अगर ट्रूथ टेबल जानते हैं तो ट्रूथ टेबल में एक्चुअली हमने क्या पढ़ा हुआ है कि दो नंबर्स जो हैं उन्हें ऐड करना है, ए और बी को, तो हमें क्या क्या मिलता है? सम मिलता है और कैरी मिलता है। तो ये जो ए और बी होंगे यही क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे सेलेक्ट लाइंस। और सम और कैरी के लिए जो हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलता है वो चारों कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। So 0 0 0 1 1 0 1 1, तो बेस्ड अपॉन दैट वी विल हैव अ सम एंड कैरी, है ना? तो इस तरीके से हमें ये जो हाफ एडर डिजाइन करना होगा यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो एक सम के लिए मल्टीप्लेक्सर होगा और एक कैरी के लिए मल्टीप्लेक्सर होगा। क्योंकि अब ये जो मल्टीप्लेक्सर होगा वो 4:1 मल्टीप्लेक्सर होगा, क्योंकि हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। इन चारों में से ही कोई एक सम आएगा, इन चारों में से ही कोई एक कैरी आएगा। ओके, बट इनपुट हमारे पास टोटल 4 है। तो बेस्ड अपॉन दिस, सॉरी इनपुट नहीं है, सेलेक्ट लाइंस, मतलब दो पॉसिबल, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। इन्हीं 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग इनमें से मान लें या तो हमारे पास 2 नंबर्स ये होंगे या ये होंगे या ये होंगे, तो इनके अकॉर्डिंग वी विल हैव 2 मल्टीप्लेक्सर्स लगेंगे हमें यहाँ पर, एक सम के लिए और दूसरा कैरी के लिए। ठीक, और सिलेक्ट लाइंस दोनों में सेम ही होगा। क्या क्या होगा? ए होगा, सॉरी ए और बी होगा, है ना? ए और बी सिलेक्ट लाइंस होंगे दोनों ही मल्टीप्लेक्सर में। 4 इनपुट होंगे, यहाँ भी 4 इनपुट होंगे, यहाँ भी। एक आउटपुट यहाँ आएगा सम, एक आउटपुट यहाँ आएगा कैरी। अब बेस्ड अपॉन दैट कि हमें इन चारों में से कौन सा इनपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? 1 है तो 5 वोल्ट से इसको अटैच करेंगे, मतलब मान लें इसे I0 I1 I2 I3 यहाँ भी, और यहाँ भी I0 I1 I2 I3। ठीक है, सो नाउ कौन से वैल्यू में 0 है और कौन से वैल्यू में 1 है? तो जहाँ जहाँ 0 है वी विल कनेक्ट दैट विथ ग्राउंड। सो ये तीनों ग्राउंड से कनेक्ट होंगे, ये एक सम का पार्ट है और ये कैरी का पार्ट है। Okay, so based upon this we can design half adder and half subtractor using multiplexer. In the same way we can design full adder and full subtractor. So full adder के लिए हमारे पास 3 inputs होते हैं। So based upon that we will have 3 inputs, और वो 3 inputs 3 select lines को represent करेंगे। In the same way we can design 8:1 mux। एक क्वेश्चन और है
that you have to design a multiplexer with NAND gates. So realization of multiplexer using NAND gates. तो एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है. मान लें कोई एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, S1 बार S0 बार D0 प्लस सॉरी S1 बार, ठीक, S1 बार S0 बार D0, देन S1 बार S0 D1 प्लस S1 S0 D2 प्लस S1 S0 D3. ये एक्सप्रेशन है. तो अभी इस एक्सप्रेशन को अगर NAND के फॉर्म में, एक्चुअली हमने इस तरह का जो मल्टीप्लेक्सर बनाया था उसे हमने AND गेट से रिप्रेजेंट किया था, है ना. 4 AND गेट्स यहाँ पर हमने लिए थे, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है. तो 4 AND गेट्स लेकर हमने इसे डिजाइन किया था. बट नाउ वी हैव टू डिजाइन दिस मल्टीप्लेक्सर यूजिंग NAND गेट्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को NAND के फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो NAND के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करें, इसे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे टर्म का क्या होगा, बार होगा. नाउ दिस बार कैन बी broken by using De Morgan's rule. So hence we will have क्या मिलेगा, S1 बार S0 बार D0 का बार डॉट एंड, ये क्या है, एंड का पार्ट है, S1 बार S0 D1 बार डॉट मीन्स एंड S1 S0 बार D2. ये क्लियर है सभी को, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये सभी को क्लियर है ये मैंने क्या किया यहाँ पर. यस सर. अभी यहाँ पर फिर से अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें y डबल बार, तो हमें क्या मिल जाएगा, S1 बार S0 बार D0 बार डॉट S1 बार S0 D1 डॉट S1 S0 बार D2 डॉट S1 S0 D3. सो इन सभी का ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट था और इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आ गया. ओके, सो अब मान लें कि ये जो एक टर्म है ये है y1, ये टर्म है y2, ये टर्म है y3 और ये टर्म है y4. तो हमें क्या मिल रहा है, y1 डॉट y2 डॉट y3 डॉट y4 का कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज अ NAND, है ना. तो हमने y डबल बार का मतलब क्या है, y डबल बार का मतलब है y. सो दिस इज एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ NAND. सो हम इन सारे टर्म्स को NAND के फॉर्म में दिखा सकते हैं. सो ये बहुत ही सिंपल है, रियलाइजेशन ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर यूजिंग NAND गेट्स. तो जैसे हमने कि एंड लगाया था उसके एक और इन द सेम वे वी विल हैव NAND. ओके, सो NAND गेट्स होंगे और यहाँ भी जो हमें गेट मिलेगा वो एक NAND गेट ही होगा. ओके, अब जो भी इनपुट्स है बेस्ड अपॉन दैट वी विल टेक D as an input, D0 D1 D2 D3 एंड S1 एंड S2 as 2 inputs. तो इनका कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, एक नॉट गेट लगाकर इसका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट भी लेंगे. किसका, S0 और S1 का, S1 और S0 का. ओके, और सारे गेट्स में इनपुट दे देंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन. सो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, multiplexer using NAND gates. Okay, now we have to proceed to demultiplexer. Okay,
just wait for a minute. Just wait for a minute. Okay. Sorry for inconvenience. Am I audible? तो ये स्केल वाला मैं भूल जाता हूँ बार बार. Okay, now we have to see the multiplexer. So demultiplexer जैसा कि नाम से पता चल रहा है that we have used, we have studied multiplexer.
So demultiplexer is just reverse of the multiplexer. That in the case of multiplexer, we have multiple input and one output. But in case of demultiplexer, we will have one data information, and then that data information is you can obtain it from different output lines. Okay, so here in this case also we will have the select lines also. Based upon that, we will have different out. So among these different outputs, at one of the output we will have the data whatever is given. So it is the input and there are outputs. So here we will have n number of output and m number of select lines. So in this case also we will have n is equal to 2 to the power m, जैसा कि हमने पहले देखा था कहाँ, in case of multiplexer. Okay, so again, तो हम इसे डेटा सिलेक्टर भी बोल सकते हैं, और जो भी एक डेटा है उस डेटा को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट आउटपुट्स के तरफ इसे हम भेज रहे हैं. तो इसे हम कह सकते हैं क्या, वन टू मैनी. ओके, मल्टीप्लेक्सर में क्या था, मक्स में क्या था, वी हैव मैनी टू वन, बट इन द केस हियर वी हैव one to many. Okay, so demultiplying. So यहाँ पर अगर demultiplexer है तो demultiplexing क्या होगा, demultiplexing is the process of taking information from one input and transmitting the same over one of the several outputs. Okay, so demultiplexing is the process of taking an input through one input and transmitting the same data over the several outputs. Okay, one of the several outputs. तो इन सारे में से किसी एक पर data output आएगा. तो in the same way we can design तो इसका examples क्या हो सकता है demultiplexer का, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, like this. Okay, और इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, अगर 1:8 बनाना है तो हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं 1:4 को, हम इस्तेमाल कर सकते हैं 1:2 को, है ना. और हमें अगर 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर बनाना हो तो हम 1:8 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1:4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1:2 का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन द सेम वे जैसे कि मल्टीप्लेक्सर में कर सकते थे, बड़े मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करने के लिए छोटे छोटे मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल कर सकते थे. इन द सेम वे डीमल्टीप्लेक्सर को भी कर सकते हैं. तो हम देखते हैं 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर, सिंपलेस्ट डीमल्टीप्लेक्सर देखते हैं हम सबसे पहले. सो ओके, क्या हो ये, कभी कभी हैंग कर जाता है और जो प्रोसेस मैंने पहले किया हुआ होता है वो बाद में होता है. ओके, सो वी हैव 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर. सो 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर होगा तो उसके पहले हमें ट्रूथ टेबल बनाना होगा. सो ट्रूथ टेबल में क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, वी हैव सेलेक्ट इनपुट्स, सेलेक्ट लाइंस और आउटपुट. इस बार हमारे पास डाटा इनपुट होगा, एक कोई डाटा इनपुट होगा और वही डाटा इनपुट क्या होगा, बेस्ड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्ट लाइंस वी विल हैव डिफरेंट आउटपुट्स. तो सेलेक्ट लाइंस हमारे पास जो है वो S1 और S0 होगा, क्योंकि वी आर यूजिंग 2
1:4 डीमल्टीप्लेक्सर, अगर 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर है मतलब n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 4 है मतलब वी हैव n इज इक्वल टू 2 टू द पावर m, सो वी हैव 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर m, इसका मतलब क्या है 2 टू द पावर 2 मतलब 2 to the power m, इसका मतलब हो गया m is equal to 2. m is the number of select lines, so these are the select lines and these are the possible combinations 0 1 0 0 0 1 1 0 and 1 1. और डेटा इनपुट कोई भी एक डेटा हम d मान रहे हैं, ठीक है, डेटा को d मान रहे हैं. सो एक डेटा है जो कि सारे लाइंस को डिस्ट्रीब्यूट होगा और बेस्ड अपॉन दिस डेटा we will have the outputs. तो अब आउटपुट हमारे पास इस बार मल्टीपल आउटपुट्स हैं, टोटल 4 आउटपुट्स हैं. तो 4 आउटपुट्स में से y3, y2, y1 और y0 ये 4 आउटपुट्स हैं. तो इन चारों आउटपुट्स में से एक हमारे पास आउटपुट मिलना चाहिए. तो हम एक यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर का. तो क्या मिलेगा हमें, ये सीधा नहीं होगा, बहुत ही खराब ड्राइंग बन गई है. ओके, सो वी हैव 1 इनपुट एंड 4 आउटपुट. जब हटाता हूं तब नहीं हटता है, ये पिक्चर बाद में हट जाता है. ओके, अभी सही है. तो वी हैव 4 आउटपुट्स. सो अमंग दिस 4 आउटपुट्स वी हैव y0, y1, y2 एंड y3. तो यहाँ जो भी डेटा है ये डेटा इन चारों में से किसी एक पर आएगा. सो दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन दिस सेलेक्ट लाइंस. सो जो भी सिलेक्ट लाइन होगा तो हम चाहते हैं क्या कि डेटा y0 पर आए जब ये 0 0 कॉम्बिनेशन हो और इन सारे पर 0 0 हो. जब ये 0 1 हो तो डेटा यहाँ मिले y1 पर और तो बाकी का सारा 0 0 हो. जब 1 0 हो तो हम चाहते हैं कि डेटा यहाँ मिले y2 पर तो बाकी सारे 0 0 हो. और जब 1 1 हो तो हमें डेटा मिले y3 पर सॉरी बाकी सब 0 0 हो. तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, वी विल हैव डिफरेंट आउटपुट्स. सो ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है y0, इन दिस केस व्हाट वी कैन सी दैट द वैल्यू y0 एज, so y0 को हम रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, y0 can be represented, so we have 1 more minute, so please rejoin again after 1 minute. So y0 can be represented as s1 bar, s0 bar and d. Okay, in the same way y1 can be represented as s1 bar, s0, d. In the same way y2, in the same way y3, s1 s0 bar d and s1 s0 d. Okay, so this should be the expression for this output of this demultiplexer. और इसे अब हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो तो फिर से हम, चूंकि ये सारे एक्सप्रेशन है हमारे पास डिफरेंट आउटपुट्स के लिए, सो वी विल हैव 4 AND गेट्स और इन